Bismillahirrahmanirrahim. In chapter number 6, which is about the solid, our today's lecture is about the factors affecting the shape of ionic compounds, lattice energy, and the comparison of ionic and the covalent crystals. The learning objectives of today's lecture are to enable our students to understand the three factors which affect the shape of an ionic compound, to understand the concept of lattice energy, and to enable the student to compare the lattice energy of different ionic compounds, and to compare the properties of ionic and the covalent crystals. So first of all, we are going to study the factors which determine or which affect the shape of an ionic compound. There are three factors which affect the shape of an ionic compound. They are electrostatic force of attraction, the radius ratio, and the poor conductivity. Electrostatic force of attraction present between the oppositely charged ions in the ionic compounds are the ionic bond. They are also known as the electrostatic forces of attraction, ionic bonds. A radius ratio determines the arrangement of ions in the crystalline structure of an ionic compound. Whereas the third property, that is poor conductivity of the ionic compound, show that ions in the crystalline solid are held in the fixed position. यानी ये जो थ्री फैक्टर जो कि किसी आयनिक कंपाउंड की शेप को इफेक्ट करते हैं वो क्या है? एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, दूसरी बात रेडियस रेशो कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिस्टल लेटिस में किस तरह अरेंज हैं, और तीसरी बात पुअर कंडक्टिविटी इस बात को शो करती है कि वो आयंस मूव नहीं कर सकते सॉलिड स्टेट में क्योंकि अपनी पोजीशन पर फिक्स है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज फैक्टर्स वन बाय वन. Now, first of all, electrostatic force of attraction. Now, ionic solids are composed of oppositely charged ions, which are cations, that is the positive ions, and anions, that is negative ions. They are held by very strong electrostatic force of attraction. These electrostatic force of attraction are ionic bonds. Due to this reason, they have definite shape and volume with definite geometric shape. आयनिक सॉलिड की डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप, डेफिनेट वॉल्यूम किस वजह से होता है? उनके आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? दे आर द आयनिक bonds. Now let's see how ionic bonds are formed. Now consider the example of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? Now ionic bond is formed by the transfer of one or more electrons from the valence shell of metallic atom to the valence shell of non-metallic atom, as a result of which the positive and negative ions are formed and they attract each other electrostatically. तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में पहला स्टेप, सोडियम वन इलेक्ट्रॉन लूज करता है by absorbing an energy equal to its ionization energy, which is equal to 496 kilojoule per mole. As a result of loss of this electron, sodium acquires the stable electronic configuration of its nearest inert gas, which is neon. Now this electron is transferred to the chlorine atom. Chlorine atom is short of one electron as compared to its most stable inert gas, which is argon. तो वन इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा और क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके नियरेस्ट नोबल गैस की इक्वल है, दैट इज आर्गन के इक्वल. एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी इक्वल टू 349 किलो जूल पर मोल. इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं.
अब जो अपोजिटली चार्ज आयंस प्रोड्यूस हुए हैं ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करते हैं और उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर 1 मोल आयनिक बॉन्ड बनता है तो ऐसी सूरत में 787 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को लेटिस एनर्जी कहते हैं। इस लेटिस के अंदर हर सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं और हर क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन सराउंड करते हैं, जिसके नतीजे में एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। दूसरा सवाल था फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बिटवीन द सोडियम एटम and chlorine atom, which are first converted into ions and they attract each other electrostatically, that they are held by ionic bond। तो ये पहला फैक्टर हो गया जो आयनिक कंपाउंड की शेप को डिटरमिन करता है। तो इसका पहले फैक्टर का मतलब हो गया कि पार्टिकल्स क्या है किसी आयनिक कंपाउंड में, वो है अपोजिटली चार्ज आयंस। अब दूसरा फैक्टर कि ये अपोजिटली चार्ज आयन एक आयनिक सॉलिड में कैसे अरेंज है, इस बात को डिटरमिन करती है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इन द आयनिक सॉलिड। यानी रेडियस रेशियो किसके बराबर होगी? इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कैटायन, दैट इज पॉजिटिव आयन, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। एक पॉजिटिव आयन अगर स्मॉलर होगा, कैटायन स्मॉलर होगा, तो उसके गिर्द जो उसकी सराउंडिंग में जो नेगेटिव आयंस हैं वो कम होंगे। अगर एक पॉजिटिव आयन लार्जर होगा तो उसकी सराउंडिंग में नेगेटिव आयंस भी लार्जर होंगे। इस तरह रेडियस रेशियो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन, कि एक आयन के गिर्द या एक आयन की सराउंडिंग में कितने अपोजिटली चार्ज आयंस मौजूद हैं। एक पॉजिटिव आयंस को आयनिक सॉलिड के अंदर कितने नेगेटिव आयन सराउंड कर रहे हैं और एक नेगेटिव आयन को कितने पॉजिटिव आयन सराउंड कर रहे हैं, ये क्या है? दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। रेडियस रेशियो से एक इंफॉर्मेशन तो ये मिली हमें कि किसी हर एक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। सेकंड इज दैट हाउ दीज आयंस आर अरेंज्ड इन द क्रिस्टल लेटिस, दैट व्हाट इज द स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन द क्रिस्टल लेटिस। इसकी एग्जांपल देखिएगा, इसको आगे डिटेल से देखते हैं कि जिंक सल्फाइड की जो अरेंजमेंट है इसकी क्रिस्टल लेटिस में वो टेट्राहेड्रल है। इसमें जिंक सल्फाइड AX टाइप कंपाउंड है, यानी इनमें एटम के दरमियान 1:1 रेशियो है, जबकि सीजियम फ्लोराइड इसमें एटम के दरमियान 1:1 रेशियो है। लेकिन इसके अंदर आयंस की, इसकी क्रिस्टल लेटिस में आयन की अरेंजमेंट इससे डिफरेंट है। इट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो अरेंजमेंट में डिफरेंस किस वजह से है? इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द साइजेस ऑफ द पॉजिटिव and the negative ions in these two compounds। इन दोनों में रेडियस रेशियो डिफरेंट है, जिसकी वजह से जिंक सल्फाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और सीजियम फ्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 है। जिंक सल्फाइड में आयंस की अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है और सीजियम फ्लोराइड में ये अरेंजमेंट जो है ये जो है वो ऑक्टाहेड्रल है। सॉरी, इट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। अब ये टेबल जो है ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि रेडियस रेशियो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। अगर जो रेडियस रेशियो 0.15 से 0.22 तक रेंज करती है तो इसका मतलब होगा कि उस कंपाउंड में एटम्स या आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, यानी एक एटम या आयन को 3 अपोजिटली चार्ज आयन या अदर एटम सराउंड करेंगे। ऐसी सूरत में क्रिस्टल लेटिस के अंदर आयंस की स्टेबल अरेंजमेंट ट्राइगोनल होगी। एग्जांपल इज द
बोरान नाइट्राइड एंड बोरान ऑक्साइड। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक नाइट्रोजन एटम 3 बोरान एटम से सराउंडेड है, या एक बोरान, ये जो आयंस हैं दे आर अरेंज्ड इन ट्राइगोनल planar form in the same way. This boron is surrounded by 3 nitrogen atoms in the trigonal planar form. तो ये रेडियस रेशियो की ये रेंज जो है ये हमें क्या बताती है कि अगर रेडियस रेशियो इस रेंज में फॉल करेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और वो आयंस क्रिस्टल लेटस के अंदर ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में अरेंज होंगे। अगर रेडियस रेशियो 0.22 से 0.414 तक रेंज करती है, ऐसी सूरत में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, यानी हर आयन को 4 अपोजिटली चार्ज आयन सराउंड करेंगे और इन आयंस की क्रिस्टल लेटस में अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगी। एग्जांपल इज द जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में जो जिंक एटम को 4 सल्फर एटम सराउंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ a regular tetrahedral arrangement of zinc and sulfur atoms in the zinc sulfide. अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 तक रेंज करती है, ऐसी सूरत में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन द क्रिस्टल लेटस विल बी ऑक्टाहेड्रल। An example is sodium chloride. सोडियम क्लोराइड में हर सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन और हर क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन सराउंड करेंगे इन द सेम वे। दिस विल गिव अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ द सोडियम क्लोराइड। अगर रेडियस रेशियो 0.732 से 1 तक रेंज करती है तो ऐसी सूरत में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, यानी एक एटम या आयन को 8 अदर एटम या आयन सराउंड करेंगे इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। Example is the cesium chloride. This is cesium ion. It is surrounded, it is present in the body of the unit cell in the central body, in the center of the body of unit cell, and it is surrounded by 8 chloride ion which are present at the corners. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 1 है तो ऐसी सूरत में यूजुअली कोऑर्डिनेशन नंबर जो है अगर रेडियस रेशियो 1 है कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगी एंड दीज आर यूजुअली मेटल्स और उनमें अरेंजमेंट क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी जिसके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो दिस टेबल शोज दैट हाउ रेडियस रेशियो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द coordination number of ions and the stable arrangement of ions in the crystal lattice। मजीद एग्जांपल देखिएगा कि सोडियम क्लोराइड की रेडियस रेशियो 0.522 है और इसकी लेटेस्ट अरेंजमेंट इस वजह से ऑक्टाहेड्रल होगी। Radius ratio of cesium chloride is 0.93 and latest arrangement is body center cubic. Radius ratio of zinc sulfide is 0.40 and its stable latest arrangement is tetrahedral। अब हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि रेडियस रेशियो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है और उसकी मदद से हम किसी आयनिक कंपाउंड का लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कंसिडर द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। नाउ रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज 95 पिकोमीटर एंड दैट ऑफ क्लोराइड आयन इज 121 पिकोमीटर। नाउ रेडियस रेशियो ऑफ रेडियस of sodium ion to the radius of chloride ion, it is 95 picometer divided by 121 picometer, it is 0.24। ये जो रेडियस रेशियो है ये अब देखिए कि ये किस रेंज में जो है ये लाई कर रही है। ये 0.414 से 0.732 की रेंज में लाई कर रही है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ आयंस जो होंगे क्रिस्टल लेटस में वो क्या होंगे, दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। तो ये रेडियस रेशियो क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, दैट ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाइस वर्सा। यानी इसी तरह
हर क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन सराउंड करेंगे। नाउ द स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन द क्रिस्टल लेटिस इज ऑक्टाहेड्रल। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर जो है वो 1 सोडियम को 6 क्लोराइड आयन सराउंड कर रहे हो तो उनकी स्टेबल अरेंजमेंट मीन अरेंजमेंट एट द मिनिमम एनर्जी विल बी ऑक्टाहेड्रल। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 sodium ion and its surrounding 6 chloride ion will form the regular octahedron, and in the same way 1 chloride ion its surrounding 6 chloride ion will also form a regular octahedron। ये आप फिगर जरा देखिएगा, ये सोडियम क्लोराइड की रेगुलर अरेंजमेंट है। ये हर सोडियम आयन जो है वो 6 क्लोराइड आयन से जो है वो सराउंडेड है, एंड इन द सेम वे हर क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन जो है ये सराउंड कर रहे हैं। अब आप देखें कि ये इस सोडियम आयन पे आप फोकस कीजिएगा, इसके सराउंडिंग 6 क्लोराइड आयन, 1 2 3 4 5 and 6. The sodium ion and surrounding 6 chloride ion will form an octahedral structure। तो ये एक सोडियम और 6 क्लोराइड आयन की जो अरेंजमेंट है that will be octahedral, यानी एक सोडियम और 6 क्लोराइड आयन octahedral वे में सोडियम क्लोराइड के लेटिस के अंदर अरेंज होंगे। इन द सेम वे ये फोकस कीजिएगा, दिस इज द क्लोराइड आयन और इसको सराउंड करने वाले 6 सोडियम आयन, 1 2 3 4 5 और ये ग्रे कलर का ये 6 ग्रीन क्लोराइड आयंस, दे विल आल्सो फॉर्म द रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। इस तरह सोडियम और क्लोराइड आयन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और दोनों जो हैं ये जो अरेंजमेंट है यानी अपोजिटली चार्ज आयन की वो ऑक्टाहेड्रॉन की फॉर्म में लेटिस के अंदर मौजूद है। तो इस तरह रेडियस रेशो हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि किसी क्रिस्टल लेटिस के अंदर आयंस की अरेंजमेंट जो है वो क्या है। इन द सेम ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है, इसका सीजियम क्लोराइड का ये शो कर रहा है कि हर सीजियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं इन द बॉडी सेंटर फॉर्म। इन द सेम वे हर क्लोराइड आयन को 6 सीजियम आयन सराउंड करते हैं इन द सेम अरेंजमेंट। तो ये हो गए बच्चे के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आयंस के दरमियान क्या है और वो रेडियस रेशो क्या बता रही है कि वो आयंस लेटिस के अंदर अरेंज कैसे हैं। और तीसरा पुअर कंडक्टिविटी। पुअर कंडक्टिविटी ये प्रॉपर्टी है जो ये शो करती है कि आयंस फिक्स हैं, मूव नहीं कर सकते। कंडक्टिविटी किस वजह से होती है? कंडक्टिविटी उस वजह से होती है जब जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। तो अगर ये कंपाउंड भी आयनिक है और कंडक्शन भी नहीं हो रही, इसका क्या मतलब हुआ कि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द आयंस। और मूवमेंट ऑफ आयंस क्यों नहीं है? रीजन इज दैट आयंस आर हेल्ड इन फिक्स पोजीशन, जिसकी वजह से क्रिस्टल की शेप, आयनिक क्रिस्टल की शेप जो है वो अनइफेक्टेड रहेगी। लेकिन ये सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेंगे? जब इनको मेल्ट किया जाए या इनका एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि ऐसी सूरत में लेटिस ब्रेक कर जाएगी, आयन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाएंगी। और आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने से अब क्या होगा कि आयंस विल बिकम फ्री टू मूव टुवर्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स और वो फ्री आयन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सो पुअर कंडक्टिविटी शो दैट ions cannot move, they are held in the fixed position. So these were the three factors which affect the shape or the structure of the ionic compounds. Now our next article is the lattice energy. What is the lattice energy? It is the measure of bond strength in the ionic compound. ionic compound में bond कौन सा है? ionic compound। और लेटेस्ट एनर्जी इस बात को मेजर करती है कि उस आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कंपैरेटिवली वीकर है या स्ट्रॉन्गर है। और यू कैन से इट
इट इज द मेजर ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन द क्रिस्टल लेटिस। और इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये किस बात को शो करता है कि किसी आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, या लेटिस के अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो कितनी है, इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द लेटिस एनर्जी। इट कैन बी डिफाइंड इन टू डिफरेंट वेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, now amount of energy released when oppositely charged gaseous ions combine to give 1 mole of crystalline ionic compound is known as the lattice energy। जब oppositely charged ions, ये oppositely charged sodium ion in the gaseous state, opposite and chloride ion, negative charged chloride ion in gaseous state, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएंगे, तो ऐसी सूरत में 787 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द लेटिस एनर्जी। और इसको हम एक और तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू ऑपोजिटली चार्ज्ड गैसेस आयंस इज आल्सो नोन एज द लेटिस एनर्जी। कि अगर 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को ऑपोजिटली चार्ज गैसेस आयंस में ब्रेक किया जाए तो उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये एनर्जी भी लेटेस्ट एनर्जी ही कहलाती है। तो फर्स्ट केस में, फर्स्ट डेफिनेशन केस में, ये लेटेस्ट एनर्जी ये एक्सोथर्मिक होगी, और सेकंड केस में ये लेटेस्ट एनर्जी एंडोथर्मिक होगी। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द लेटेस्ट एनर्जी? तो फिर एक दफा वैसे देख लें कि लेटिस कब बनती है? जब ऑपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करते हैं इन सच अ वे दैट ईच आयन इज सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस। यानी सोडियम क्लोराइड में जब सोडियम और क्लोराइड आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो किस तरह करते हैं? हर सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन और हर क्लोराइड आयन को जो है वो 6 सोडियम आयन सराउंड करेंगे। इन ऑपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी कितनी है? 787 किलो जूल पर मोल, और ये लेटेस्ट एनर्जी है। और इतनी ही एनर्जी हमें चाहिए होगी अगर हम इसी लेटेस्ट को, इसी क्रिस्टल को के 1 मोल को ऑपोजिटली चार्ज गैसेस पॉजिटिव आयन दैट इज सोडियम और क्लोराइड आयन में ब्रेक करना चाहेंगे। टू फैक्टर्स विच इफेक्ट द लेटेस्ट एनर्जी: साइज ऑफ आयन एंड द चार्ज ऑन द आयन। With increase in the size of ion, there will be decrease in the latest energy। यानी latest energy size of ions या ionic radii के inversely proportional है। मतलब कि latest energy decreases with increase in the size of cation or anions। क्या reason? The reason is that with increase in the ionic size, the packing of ion becomes less tight। स्मॉलर आयन जो है वो ज्यादा टाइटली पैक होते हैं क्रिस्टल के अंदर एज कंपेयर टू द लार्जर आयन। जब जो है वो लार्जर आयन लेस टाइटली पैक होंगे तो क्या होगा? उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होगा, और फिर क्या होगा कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से लेटेस को ब्रेक करने में लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या जब लेटेस बनेगी तो लेस एनर्जी रिलीज होगी। जितना लार्जर साइज का आयन होगा, लेटेस एनर्जी उतनी ही डिक्रीज करती जाएगी। इसको हम इस ग्राफ की मदद से स्टडी करते हैं। दिस इज द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल दैट इज ग्रुप 1 मेटल्स, that is lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium ions, and these are the fluoride, chloride, bromide and iodide ions। तो ये ग्राफ क्या शो करता है कि कीपिंग द anion constant, ये कीपिंग द anion constant, the latest energy decreases with increase in the size of alkali metal ions।
लिथियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सोडियम फ्लोराइड उससे कम, पोटाशियम फ्लोराइड उससे कम, और रिबीडियम एंड सीजियम फ्लोराइड सबसे कम। ठीक हो गया। और अलोंग एक्स एक्सिस हम ये क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कीपिंग द cation constant, keeping the cation constant, the latest energy also decreases with increase in the size of negative ion। मिसाल के तौर पे आप सोडियम के केस में देखिएगा कि सोडियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा है, सोडियम क्लोराइड, ड्यू टू इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, the latest energy of sodium chloride will be decreased. Sodium bromide, size of bromide ion is further larger, so there will be further decrease in the latest energy। और सोडियम आयोडाइड की लेटेस्ट एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। ये आप डाटा भी देख लीजिए जो ये शो करता है, सोडियम फ्लोराइड लेटेस्ट एनर्जी 1037 किलो जूल पर मोल, लिथियम क्लोराइड, अब क्लोराइड आयन का रेडियस क्योंकि ज्यादा है, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी 852 किलो जूल पर मोल। लिथियम ब्रोमाइड लेटेस्ट एनर्जी फर्दर डिक्रीज करके 815 किलो जूल पर मोल, और लिथियम आयोडाइड ये सबसे कम होगी 361 किलो जूल पर मोल। Similarly, you can compare the latest energy of sodium fluoride, sodium chloride, sodium bromide, and sodium iodide, and you can also compare the latest energy of पोटाशियम फ्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम आयोडाइड। आप लिथियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी को सोडियम फ्लोराइड से और पोटाशियम फ्लोराइड से कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह आप लिथियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी को सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल पोसेस द ग्रेटेस्ट लेटेस्ट एनर्जी, गिव द रीजन। तो आपने उसको जस्टिफाई करना होगा। तो दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर इज द चार्ज ऑन द आयन। Now latest energy increases with increase in the charge on the ion। आयन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा लेटेस्ट एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। Now latest energy increases with increase in the charge on the ion because ions with greater charge will have the strong electrostatic force of attraction. So more energy is released in the formation of lattice or greater energy will be required to break the lattice। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतनी ही ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी। ये एक टेबल है, डाटा टेबल है, ये आपको शो करेगा कि कैसे लेटेस्ट एनर्जी जो चार्ज इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है। आप एग्जांपल देखिएगा कि सोडियम फ्लोराइड लेटेस्ट एनर्जी इज 923 किलो जूल पर मोल, सोडियम क्लोराइड 787 किलो जूल पर मोल। सोडियम पे भी +1 चार्ज है, क्लोराइड पे भी -1 यानी उतना ही चार्ज है। लेकिन सोडियम ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी अब काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है 2695 किलो जूल पर मोल। किस वजह से? कि रीजन इज दैट साइज चार्ज ऑन ऑक्साइड आयन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द सोडियम आयंस। और इस तरह देखिएगा कि सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी 787 किलो जूल पर मोल, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी 2524 किलो जूल पर मोल। रीजन, द चार्ज ऑन मैग्नीशियम आयन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द सोडियम आयन। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे आप जरा ये भी देखिएगा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी क्यों डिक्रीज की है? इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैल्शियम आयन। लेकिन अब एल्यूमिनियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी काफी ज्यादा है, किस वजह से? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द चार्ज ऑन द एल्यूमिनियम आयंस। सो दीज वर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द लेटेस्ट energies। Now our last article is the comparison of ionic and the covalent solid। We'll compare certain properties of these two type of the crystals। So first of all, nature of bonding।
Now, ionic crystals are composed of oppositely charged ions which are held by electrostatic force of attraction. And these ions are formed by complete transfer of one or more electron from the valence shell of metal atom to the valence shell of the non-metallic atom. For example, sodium will lose one electron to form sodium ion, and this chloride ion will be gained by this electron will be gained by chloride ion to form the chloride ion. Now sodium and chloride ion will attract each other electrostatically. That ionic bond will be formed between them. Now covalent crystals are composed of atoms of similar or dissimilar atoms. Composed of atoms of similar or dissimilar elements, and they are held by network of the single covalent bonds. तो इस वजह से इनको कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स भी कहा जाता है. Now second property is the crystal lattice. Now the crystal lattice of ionic compound depends upon their radius ratio. It may be trigonal, tetrahedral, octahedral or body centered cubic depending upon the radius ratio, जैसे हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं. Whereas the crystal lattice of the covalent compound is of two types. Either they are joint covalent solid or layered covalent solid. Joint covalent solid में क्या होता है कि अगर एटम जो हैं उनके दरमियान सिंगल कोवल बॉन्ड का 3 डायमेंशनल नेटवर्क एक्सिस्ट करता है, तो ऐसी सूरत में जो सॉलिड है वो जॉइंट कोवलेंट सॉलिड कहलाता है. एग्जांपल इज दैट ऑफ डायमंड, वेयर एज इफ द atoms are held by 2-dimensional network of the covalent bonds in the form of the separate layers, and these layers are arranged one above other and held by van der Waals forces. तो ऐसी सूरत में जो सॉलिड है वो लेयर्ड कोवलेंट सॉलिड कहलाता है. ग्रेफाइट में कार्बन एटम क्या बनाते हैं? लेयर्स ऑफ कार्बन एटम फॉर्मिंग हेक्सागोनल रिंग्स, और ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं. लेयर्स के दरमियान क्या है? van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये अरेंजमेंट 2 डायमेंशनल है. इसे आप क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज द लेयर्ड कोवलेंट सॉलिड्स. Now the third property is electrical conductivity. Ionic solids are non-conductor in the solid state. However, they conduct electricity in molten state or in the form of aqueous solution because ions become free to move in the molten state or in the aqueous solution. Covalent crystals are non-conductor of electricity with the exception of graphite. क्यों? इसलिए ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. Both the ionic and covalent crystal possess the definite geometric shape. Ionic crystal के अंदर ionic bonds नॉन डायरेक्शनल होते हैं कि एक आयंस को जो है वो सर्टेन नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस सराउंड करते हैं जिनकी कोई खास डायरेक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती, वो उसको कंप्लीटली सराउंड करते हैं. वेयर एज द कोवलेंट बॉन्ड्स इन दीज क्रिस्टल्स आर डायरेक्शन दैट देयर वैलेंसीज आर डायरेक्टेड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल ये जो क्या कहते हैं इसमें डायमंड में जो है वो हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 109.5 डिग्री के एंगल पर अरेंज है. Now atoms in the ionic solids are closely packed together, यानी ये closely packed structure possess करते हैं. Whereas the atoms in the covalent crystals they are arranged in the open structure. क्योंकि ये directional है, atoms के दरमियान जो open spaces होती हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि कोवलेंट क्रिस्टल जो है दे पोजेस ओपन क्रिस्टल. फिर देख लीजिए कि क्योंकि ये डेफिनेट डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं. एम्प्टी स्पेसेस की वजह से जो है वो क्लोजली पैक नहीं होते. वी से दैट दे पोजेस द ओपन स्ट्रक्चर. Ionic crystal do not exist in the form of molecule, independently exist नहीं करते. उसकी रीजन ये है कि these force of attraction exist between all the oppositely charged ions. We cannot separate a pair of ions, यानी सोडियम और क्लोराइड आयन का एक पेयर independently exist नहीं करता. Whereas covalent crystals always exist in the form of giant molecules. मिसाल के तौर पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी एक सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसमें हर सिलिकॉन एटम को 4 ऑक्सीजन एटम और
हर ऑक्सीजन एटम को 2 सिलिकॉन एटम सराउंड करते हैं, या हर कार्बन एटम को डायमंड में 4 कार्बन एटम सराउंड करते हैं, ग्रेफाइट में हर कार्बन को 3 अदर कार्बन एटम सराउंड करते हैं. So they exist in the form of macromolecule or the giant molecule. So this was the comparison of the properties of ionic and the covalent crystals. Now the review questions about today's lecture are that what's the nature of the force of attractions in ionic crystals and how they are developed? What is radius ratio? Give its significance. Why ionic solids are non-conductor in solid state whereas they can conduct the electricity in molten state or in the aqueous solution? What is lattice energy? Define it. What are the factors affecting it? How lattice energy depends upon the ionic radius? How lattice energy depends upon the charge on the ions? And differentiate between the ionic and the covalent crystals. डियर स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल को आप पहले वीडियो जो लेक्चर व्यू कीजिएगा, उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक्स में से इसको पढ़ें, और अगर कोई बात क्लियर नहीं होती तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं. आपने काम रेगुलर बेसिस पे करना है. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.